Hallelujah. Praise the Lord. Welcome once again. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। Let's together worship the Lord. क्यों ना आज सुबह मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। This is the day the Lord has made. आज का दिन यहोवा ने बनाया है। Amen. Amen. This is His day. और आज का दिन उसका है। Hallelujah. Hallelujah. Give Him all the praise and glory and honor. प्रभु को सारी महिमा, स्तुति और आदर दें। Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. There's one song we sing. एक गीत है जो हम गाते हैं। Unto Thee, O Lord, do I lift up my soul. प्रभु तेरे लिए मैं अपने प्राण को उठाता हूँ। It's a prayer. और ये वास्तव में एक प्रार्थना है। Hallelujah. आमेन। So let's lift up our soul unto God. क्यों ना आज सुबह हम अपने प्राण को परमेश्वर के सामने उठा लें। Amen. Hallelujah. Amen. Unto Thee, O Lord, Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. I lift up my soul. Unto Thee, O Lord, Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. I lift up my soul. Oh my God, My God, I trust in Thee. trust in thee. Let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. Show me Thy way. Show me thy way. Thy ways, O Lord. Ways, O Lord, Teach me Thy path. teach me thy path. Thy paths, O Lord. Paths, O Lord, Oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. Unto Thee, O Lord, do I lift up my soul. lift up my soul. Unto Thee, O Lord, Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. lift up my soul. Oh my God, Oh my God, I trust in Thee. trust in thee. Let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. Show me Thy way. Show me thy way. Thy ways, O Lord. Ways, O Lord, Teach me Thy path. teach me thy path. Thy paths, O Lord. Paths, O Lord, Oh my God, my God, I trust in Thee. trust in thee. Let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. Hallelujah. Yes, Lord. What a prayer. क्या ही खूबसूरत ये प्रार्थना है। I lift up my soul unto You. प्रभु मैं अपने प्राण को तेरी ओर उठाता हूँ। Let me not be ashamed. मुझको शर्मिंदा मत होने देना। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Sing that song. Would you be free from the burden of sin? वो गीत कहता, क्या तुम अपने पाप के बोझ से आजाद होना चाहते हो? There is power in the blood of the Lamb. वहां पर मेमने के लहू में कुदरत है। Amen. आमेन। Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's a wonderful power in the blood. I know there's power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power, the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood,
power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide. There's wonderful power in the blood. I know there's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There's power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's flow. There's wonderful power in the blood. I know there's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. I know there's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Bolo jai jai, कुदरत भी है लहू में, ओ बोलो जय जय। कुदरत भी है यीशु के लहू में है। बोलो जय जय, कुदरत भी है लहू में, बोलो जय जय। कुदरत भी है यीशु के लहू में है। Oh, when I think of the goodness of Jesus and all that He's done for me, my soul cries out, hallelujah, praise God for saving me. Victory, sweet victory is mine. Victory, sweet victory is mine. I'll just hold my peace, let the Lord fight the battle. Victory, sweet victory is mine. Satan, your kingdom's coming down. Satan, your kingdom's coming down. I'll just hold my peace, let the Lord fight the battle. Satan, your kingdom's coming down. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all that He's done for me, my soul cries out, hallelujah, praise God for saving me. Oh, victory, sweet victory is mine. Oh, victory, sweet victory is mine. I'll just hold my peace, let the Lord fight the battle. Victory, sweet victory is mine. Satan, your kingdom's coming down. Satan, your kingdom's coming down. I'll hold my peace, let the Lord fight the battle. Satan, your kingdom's coming down. Oh, there is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power, the precious blood of the Lamb. Hallelujah. हालेलुया। Victory is ours. जीत हमारी है। Jesus won that battle. यीशु मसीह ने उस लड़ाई को हमारे लिए जीत चुका है। Hallelujah. Amen. On the cross of Calvary, कलवरी के क्रूस में defeating sin, पाप को उसने पराजित कर दिया है, Satan, शैतान को पराजित कर दिया है, hell and death, और नरक को और मृत्यु को पराजित किया and है, the grave. और कब्र के ऊपर जय पाई है। Victorious Christ.
मसीह जो जयवंत यीशु है, He gives victory to all those who believe on Him. और हर एक जो उसके ऊपर विश्वास करते उनको भी वो वैसा ही जीत देता है। So resist the devil. और इसलिए शैतान का सामना करना है, He will flee. और वो तेरे सामने से भाग जाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। शैतान का सामना कर वो तो भागेगा, शैतान का सामना कर वो तो भागेगा, शैतान का सामना कर वो तो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। ओ यीशु का नाम ले भागेगा, यीशु का नाम ले तो भागेगा, यीशु का नाम ले वो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। वचन को थामे रहे वो तो भागेगा, वचन को थामे रहे वो तो भागेगा, वचन को थामे रहे वो तो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। Take the name of Jesus, He will flee from you. Take the name of Jesus, He will flee from you. Take the name of Jesus, He will flee from you. He is always a conquered foe. Oh, He is always a conquered foe. Stand on the word, He will flee from you. Stand on the word, He will flee from you. Stand on the word, He will flee from you. He is always a conquered foe. He is always a conquered foe. Bless your name. तेरे लहू से मुझे धोते हैं प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। ओ तेरे ही समान होने के लिए तेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल की कील से मुझे मारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दलदल की कील से मुझे उभारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी ही हूँ। किया है तमाम पापों को, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी हूँ। तेरे लहू से मुझे धो दे है प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। ओ तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। नया बनाया नया करके स्वे
दिया और नया बनाया, नया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। तेरे लहू से जितो दे प्रभु पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। ओ तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। The greatest thing in our life हमारे जीवन में सबसे महान बात is to love God, वो ये है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, to serve Him. परमेश्वर की सेवा करें। This song said, ये गीत बोलता है, my goal, my aim, my prayer मेरा लक्ष्य, मेरा मकसद और मेरी प्रार्थना is to be like Christ. तेरे समान होने के लिए प्रभु। Hallelujah. The greatest thing in all my life is loving you. Greatest thing in all my life is loving you. I want to love you, Lord. Love you, Lord. The greatest thing in all my life is loving you. The greatest thing in all my life is serving you. The greatest thing in all my life is serving you. I want to serve you, Lord. Serve you, Lord. The greatest thing in all my life is serving you. Hallelujah. 'Cause
there. Lift up your holy hands. Give him glory, give him praise and honor. Worthy is the Lamb. You promised us, Lord, प्रभु तूने हमसे वायदा किया that where 2 or 3 will gather in my name, कि जहां पर भी 2 या 3 लोग मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, I am in the midst of them. उनके मध्य में मैं हूं। Thank you for honoring us with your presence. धन्यवाद प्रभु, अपनी उपस्थिति हमें देकर हमारा आदर करने के लिए। Without you, we cannot do anything. बिना तेरे प्रभु हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। Where shall we go? You have the words of eternal life. हम किसके पास जाएं प्रभु? अनंत काल के जीवन के वचन तो केवल तेरे ही पास से। Speak, Master. स्वामी आज तू बोल, Your servant listeneth. तेरे दास सुनते हैं प्रभु। Let your word become life. तेरा वचन जीवन बन जाए। This day, आज के दिन when your soul will find salvation in you. ओ लोगों का प्राण तुझ में उद्धार को पाने पाए। We bless your name, Father. पिताजी तेरे पवित्र नाम को धन्य कहते Holy हैं। Son and Holy Spirit, ओ पवित्र पुत्र और पवित्र आत्मा, give you glory. सारी महिमा तुझे देते। Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Adore you. Glorify your name. Be glorified. Be glorified, O God, be glorified. Kararama mama siri kiriri ushura karaba. Hallelujah. Labasya karibabasi. Wonderful, wonderful. Jesus is here. Bless your name.
Bless your name this day. Bless your word to our hearts, O God. परमेश्वर तेरा वचन हमारे हृदय के लिए धन्य कर दे आज। Give us utterance to speak. तेरे वचन को बोलने की सामर्थ्य दे। Give us receptive hearts and listening ears. तेरे वचन को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे। Bless your precious people. अपने सुनने वाले बहुमूल्य लोगों पर तेरी आशीष हो। Heal the sick, O God. जो बीमार है उन्हें चंगा कर दे। Be healed. चंगे हो जाओ। Be healed in Jesus' name. यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। Bless you, God. तेरे नाम को धन्य कहते प्रभु। Amen. Praise the Lord and thank God for this wonderful morning. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु की महिमा करते हैं। I come back together to worship God. एक बार फिर से हम प्रभु की आराधना करने इस रीति से हम लौट के आ जा पाए हैं। Count our many blessings. ओ अपनी उन बड़ी आशीषों को गिने। Name them one by one. नाम बनाम उन आशीषों को। Surprise you what the Lord has done. और आपको वो अचंभा कर देगा कि प्रभु ने कितना कुछ हमारे लिए किया है। Whatever the situations we have gone through, परिस्थितियां जिससे भी हम वर्तमान समय में गुजरे हैं, we know that all things work together for good to them that love the Lord. यह जानते हुए कि हर बातें उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। You don't need to understand. ओ हमें समझने की जरूरत नहीं। You just need to hold His hand. हमें तो चाहिए कि केवल उसके हाथ को थाम के चलें। You don't need to ask the reason why. हम यह भी पूछने आवश्यक नहीं कि प्रभु क्यों हुआ, For I know क्योंकि हम जानते the Lord will make a way. प्रभु एक रास्ता निकालेगा। Hallelujah. हालेलुया। Through the night and through the day. चाहे रात के अंदर से हो चाहे दिन के अंदर से हो, You don't need to understand. तुम्हें समझने की जरूरत नहीं। Just hold His hand. केवल उसके हाथ को थाम के चलो। The Lord who has led us so far, जिस परमेश्वर ने यहाँ तक हमको लेकर आया the है, grace that has brought us so far, जिस अनुग्रह ने चलाकर यहाँ तक पहुँचाया है, will take us through. वही अनुग्रह हमको आगे भी ले जाएगा। That should be our prayer. हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए। Lord, हे प्रभु, help me finish my course with joy, अपने दौड़ को आनंद के साथ पूरा करने में मेरी सहायता कर। faithfully. विश्वास योग्यता के साथ। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Shall we look to the Lord a word of prayer? आइए हम इस समय प्रार्थना में प्रभु के पास जाएं। Our blessed heavenly Father, हमारे धन्य स्वर्गीय पिता, we are walking into your holy presence this morning. हम आज की सुबह तेरी पवित्र उपस्थिति में कदम रखते हैं, We say nothing in my hands I bring, कहते हुए कि अपने हाथ में कुछ भी तुझको देने नहीं लाए हैं, simply to the cross I cling. केवल लिपटे हुए हैं तेरे क्रूस से। That grace of God परमेश्वर का वो अनुग्रह that was bought for us on the cross of Calvary, जो हमारे लिए खरीदा गया कलवरी के क्रूस पर, Lord, by which we are accepted into the beloved. जिसके द्वारा हम तेरे प्रिय परिवार में शामिल किए We गए can call you Father. और तुझको पिता कह सकते। Now we pray, अब हम तुझसे प्रार्थना करते, glorify your Son. अपने बेटे यीशु को महिमा दे। Receive all glory, सारी महिमा आज तू ले ले, all praise, सारी स्तुति तू ले ले, for you alone are worthy. क्योंकि योग्य तो केवल तू ही है। Bless your precious people. अपने सुनने वाले बहुमूल्य लोगों को तू धन्य कर देना। Bless us all together. हम सबको प्रभु तू मिलकर आशीष देना। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Shall we turn our Bibles to the book of Mark? आइए क्यों ना हम अपनी बाइबलों में खोल लेंगे मरकुस का सुसमाचार The 14th chapter. और उसका 14 अध्याय। मरकुस 14 अध्याय। We are reading from verse 1. और उसकी पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं। After 2 days was the feast of the Passover, and the unleavened bread, and the chief priests and the scribes sought how they might take him by craft and put him to death. 2 दिन के बाद फसह और अखमीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डालें। But they said not on the feast day,
lest there be an uproar of the people. परंतु कहते थे, पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। And being in Bethany, in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very precious, and she brake the box and poured it on his head. जब वह बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। And there were some that had indignation within themselves and said, why was this waste of the ointment made? परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया? For it might have been sold for more than 300 pence and have been given to the poor. And they murmured against her. क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था, और वे उसको झिड़कने लगे। And Jesus said, let her alone. Why trouble ye her? She hath wrought a good work on me. यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। For you have the poor with you always, and whensoever you will, you may do them good. But me ye have not always. कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, और जब तुम चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। She had done what she could, and she is come aforehand to anoint my body to the burial. जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। Verily, verily, I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she had done shall be spoken for her, memorial of her. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। Amen. आमेन। It's a beautiful passage. बहुत ही खूबसूरत ये भाग है। It doesn't mention the name of the woman. इस भाग में स्त्री का नाम उल्लेखित नहीं है। In one place we read that another lady came in uninvited. एक और जगह में बाइबल में हम पढ़ते हैं कि एक और ऐसी स्त्री बिना आमंत्रण के वो घर के अंदर आ गई थी। In the house of Simon the Pharisee. और वो एक फरीसी शमौन के घर में था। Here Jesus is in the house of Simon the leper. किंतु यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर में बैठा था। I truly believe that this man was healed by Jesus. और मुझे पूरा भरोसा है कि ये कोढ़ी किसी समय कोढ़ी था, परंतु यीशु के द्वारा चंगा हो चुका था। This was one of the homes in Bethany. ये घर बैतनिया में ही बसा हुआ एक घर था। One of the homes which always welcome Christ. एक ऐसा घर जहाँ हमेशा यीशु मसीह का स्वागत रहता था। They are all poor people living there. बैतनिया में रहने वाले अधिकतर लोग कंगाल लोग थे। Mary, Martha and Lazarus' home was there. मरियम, मार्था और लाजर का भी घर उसी बैतनिया में ही था। This is also another house where Jesus resorted. यह भी एक घर बैतनिया का ही था जहाँ पर भी यीशु रुकता था। Simon the leper. और वो था शमौन कोढ़ी का घर। Thank God for people. प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे लोगों के लिए, Where Jesus finds room जहाँ पर यीशु मसीह के लिए लोग जगह रखते हैं, and is always welcome. जहाँ उसका हमेशा स्वागत रहता है। Not sometimes, कभी कभी के लिए on नहीं, occasions, किसी अवसर के लिए नहीं, but always. परंतु हमेशा के लिए। Amen. आमेन। And we find here और यहाँ पर हम पाते हैं a woman एक appears. स्त्री वहाँ पर प्रकट हुई, And she comes with a very precious ointment और वो बहुत ही बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई, in an alabaster box. जटामासी का और वो संगमरमर के पात्र में। And she breaks that box and pours the whole ointment on Jesus' head. और वो आकर उस पात्र को तोड़ती है और उसके इत्र को यीशु के सिर पर उंडेल देती है।
That was all that she had. उसके पास जो कुछ था वो यही था, She poured it on the Lord. और उसने उसे लाकर प्रभु यीशु मसीह के सिर पर उंडेल दिया। We have always expected हमने हमेशा से ही ऐसा अपेक्षा किया है that whenever we pray, God must answer us. कि जब कभी भी हम प्रार्थना करें परमेश्वर को उसका उत्तर देना Yes, He चाहिए। does answer us. हाँ प्रियो, परमेश्वर उत्तर देता He है, is faithful. वो विश्वास योग्य है, He is faithful to His word. वो अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है, And whatsoever we ask in His name, He gives to us. और जो कुछ हम उसके नाम में मांगते हैं प्रभु हमें देता है। But in our requests, परंतु उसके निवेदन में very, very seldom we have done something for God. बहुत कम अपने निवेदनों में हमने परमेश्वर के लिए कुछ किया है। Always people say, most of the times people say, if God will do this, then I will do that for Him. अधिकतर समय लोगों का ऐसा कहना रहता है कि यदि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ऐसा कर देगा तो मैं प्रभु के लिए ये करूंगा। You don't find anything that God has done for this woman. और आप कहीं पर नहीं पाते कि प्रभु यीशु ने इस स्त्री के लिए कुछ भी किया हो। She had some need in her heart. परंतु स्त्री के हृदय में कोई तो जरूरत थी। She wanted to express her gratitude. वो अपनी कृतज्ञता जाहिर करना चाहती थी। She wanted to express her love. वो अपने प्रेम को इस प्रभु को दिखाना चाहती थी। There were those who were not expressed in words. जो शब्दों में वो नहीं कर पा रही थी। It was not expressed in eloquence. और वो उसके शब्दों की भाषा में वो उसको नहीं कर सकती थी। It was not expressed neither in prayer. और न प्रार्थना के रूप में उसको व्यक्त कर पाती थी। But it was expressed in her actions. परंतु उसके कार्य के द्वारा उसको व्यक्त कर पा रही थी। People must misunderstand. लोग कई बार हमें गलत समझते हैं। They misunderstood this woman. लोगों ने स्त्री को भी गलत समझा And the disciples they misunderstood her. और चेले भी स्त्री को गलत समझ गए। And everybody thought Jesus was their property. और सब लोग को ऐसा लगने लगा प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है। And now how come this woman has come in और between? कैसे ये स्त्री यहाँ बीच में हमारे आ गई। We have followed him for something. हम तो यीशु मसीह के पीछे कुछ कारण से इतने समय से चल रहे, But Jesus has not promised anything to her. परंतु यीशु मसीह ने स्त्री से कुछ भी वायदा नहीं किया था। Yet she chose to give everything to God. तो भी उसने अपने पास जो कुछ था प्रभु को देने का तय करके It is आई। very surprising बहुत ही चकित करने वाली एक बात है that people they were lot of offended. They were offended when she poured that ointment on Jesus. कि लोग इस बात से जो बैठे थे नाराज हुए कि वो इस महंगे इत्र को यीशु के सर पर उंडेल दी। In the 4th verse it says, चौथी आयत में कहता है there were some. परंतु कोई कोई वहां पर थे। Listen, सुनिए, it's not pointing to one person. यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए नहीं लिखा है। Like John writing says, Judas is the one who said this. जैसे यूहन्ना लिखते हुए बोलता है कि यहूदा इस बात में नाराज होकर बोलने लगा Because he held the bag, he had the money. क्योंकि उसके पास में पैसों की थैली रहती थी। But here it says, परंतु यहाँ वो कहता है there were some वहां पर कोई कोई लोग थे that had indignation within themselves जो अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, and said, कहते थे why this waste of the इस- ointment made? इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया। Listen, सुनिए, this was not their property. वो इत्र उन लोगों की संपत्ति नहीं थी जो बर्बाद हो रही थी। That was a whole 1 year's earning of a person. वो एक आदमी जो एक साल में कमाता है उतनी कीमती वो एक समान था। If you take it in our Indian rupees, यदि आज हम इसको भारतीय मुद्रा में समझने का प्रयास करें it would be 75,680 rupees. आज के समय में 75,686 रुपए के लगभग की कीमत उसकी थी। I'm sorry, 75,468. माफ करे 76,468 रुपए की कीमत थी। Just imagine. कल्पना करें One time, एक समय 75,000 rupees. 75,000 रुपए का एक सामान वहां पर जा रहा था। That means इसका मतलब these guys knew the value. इन लोगों को उसकी कीमत को मालूम था। Unless you have
been around people who had this, you will not know the value of it. जब तक आप ऐसे लोगों के आसपास नहीं रहेंगे, आपको पता नहीं रहेगा कि इसका मूल्य कितना होता है। Those of us we buy cheap perfumes, we won't know what the expensive one costs. और जो लोग सामान्य इत्र को खरीदते हैं, उनको पता नहीं होता कि महंगे इत्र की कीमत कहाँ तक चली जाती They है। might cost thousands of rupees. वो हजारों रुपए में वो उसकी कीमत जा सकती है। And this lady, और ये स्त्री her whole year's earning, उसके पूरे साल भर की जो कमाई थी, poured it on Jesus. वो आकर उसने यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया। It's very surprising. बहुत चकित करने वाली बात है People don't give themselves. कि लोग अपने आप को तो नहीं देते, They don't give things, वो चीजों को खुद तो नहीं देते, but they don't like others to give to God. परंतु वो ये भी पसंद नहीं करते कि कोई दूसरा प्रभु को जब देता है, They would rather appreciate people who buy things for themselves. वो ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद करेंगे जो अपने स्वयं के लिए चीजें खरीदते हैं। They will appreciate them, encourage them. और उसकी तारीफ करेंगे, शाबाशी देंगे। And if by chance that person seems to give to God's work, परंतु आदमी अपने लिए खर्च ना करके प्रभु के कार्य के लिए वो बड़ा धन देता or maybe है, give it to some minister of God, या प्रभु के किसी सेवक को देता है, what was the need for him to have that? तो लोग सवाल करते कि उसे इसकी क्या जरूरत थी। Mind you, she was not putting it on a stranger. ध्यान रहे कि वो स्त्री किसी एक अनजान व्यक्ति के सिर पर उसे नहीं उंडेल रही She was थी। putting on their master, वो तो उन्हीं के, उन चेलों के ही स्वामी के सर पर उंडेल रही थी, upon their Lord. उन्हीं के प्रभु के सर पर। Amen. आमेन। The one who they were following. वे उस यीशु जिसका पीछे वो चल रहे थे, उसी के सर पर वो उंडेली थी। I think they should have given her a clap. ओ मुझको तो लगता है सबको मिलकर उसके लिए ताली बजाना चाहिए था। They should have applauded her. उन लोगों को उसकी तारीफ करनी चाहिए थी। They should have praised the Lord. उन लोगों को प्रभु की महिमा करनी चाहिए थी उस पल। But some of them, परंतु उनमें से कोई कोई लोग they had indignation within अपने themselves. मन में वो रिसियाने लगे और कहने लगे, Why was this waste of ointment made? क्यों सत्यानाश किया गया इस इत्र का। For some people, the things given to God's house is a waste. कुछ लोगों के लिए प्रभु के भवन या प्रभु के कार्य में दिया गया वस्तु सत्यानाश है। Why give there? वहां पर क्यों देना? Why give to the missions? मिशंस के लिए क्यों देना पूछते? Why give to the poor? क्यों कंगालों को देना वो सवाल करते हैं। Everyone must work hard and get on their money. और कहते हर एक व्यक्ति को अपना मेहनत करके कमा के जीना चाहिए। That's true. ये बात तो ठीक है, But there are people who need. परंतु ऐसे भी लोग हैं जो जरूरतमंद हैं। And God is in need of you. और यहाँ पर कई कुछ को परमेश्वर की जरूरत है। Disciples never thought to do something like this to Jesus. चेलों ने अब तक नहीं सोचा था यीशु मसीह के लिए ऐसा कुछ करने का। And this woman had poured everything she had. और इस स्त्री ने आकर उसके पास जो कुछ भी था उसे सब यीशु के सर पर उंडेल दिया It is था। a shame to say. और ये बहुत ही शर्म कहने की बात है They're saying it is a waste. जब वो ये कह रहे थे कि इसे सर पर उंडेल करके सत्यानाश किया गया। When you go and attend somebody's wedding and then you say it is a waste. यदि आप किसी के विवाह में जाते और ये बोलते कि ये सब सत्यानाश किया गया है, You could have had a simple show. सामान्य सी शादी हो सकती थी। Why you wasted so much of money? क्यों इतना धन बर्बाद किया गया? Brother, that was not your money. भैया वो आपका धन नहीं था, It was not financed by you. ना आपने उसमें कोई भी धन उस समारोह में लगाया था। How easily our comments come out. परंतु कितनी आसानी से हमारे मुंह से शब्द निकल Oh, आते from where हैं। did he get all this? अरे ये सब उसे कहां से मिला? Friends, प्रिय दोस्तों, when others are blessed, we should be happy. जब किसी दूसरे को आशीष मिलती है हमें खुश होना चाहिए। She's pouring 75,000 rupees worth of ointment on their master. यदि वो 75,000 रुपए की कीमत का एक इत्र स्वामी के ऊपर उंडेल रही है तो हमें आनंदित होना चाहिए। Hallelujah. The whole हालेलुया। house is full of that fragrance. वो पूरा घर, वो मकान उस खुशबू से भर गया। People crossing the road, they turn around to see what's happened. उस घर के बाहर से गुजरने वाले आदमी भी मुड़कर देखता था यहाँ अंदर से क्या खुशबू आ रही है। Something has happened. अंदर कुछ हुआ है। You know, when we sacrifice, God smells our sacrifice. आप जानते जब हम कभी हम बलिदान करते हैं परमेश्वर के पास उस बलिदान की खुशबू जाती है। Sacrifice is something which hurts us. कोई ऐसा बलिदान जिसे हमारे हृदय में
चोट पहुंचे वो बलिदान। There are some very poor people who give to God's work. कुछ ऐसे बहुत गरीब लोग भी हैं जो परमेश्वर के कार्य के लिए दिल खोल कर देते हैं। But 1, 2 rupees, वो चाहे उनके लिए वो 1 रुपया हो, चाहे 2 रुपया हो, $1, चाहे $1 हो, it makes a big amount afterwards. लेकिन परमेश्वर के लिए वो बड़े मायने रखती है। But those who are not flowing in the Spirit, परंतु जो लोग आत्मा के बहाव में नहीं चल रहे हैं, they will murmur among themselves. वे आपस में कुड़कुड़ाने लगते, झड़कने लगते हैं। It might have been sold for 300 pence. कहने लगे इस इत्र को तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जा सकता था, Given to the poor. कंगालों को बांटा जा सकता Listen था। now. अब सुनिए, They murmured against her. और वे उसके विरुद्ध में वो लोग कुड़कुड़ाने लगे। See that? देखिए How strange. कितने अजीब बात है। It's not your money. आपका धन वो नहीं था, You are deciding what they should have done. आप ये तय कर रहे हैं कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए था। Indirectly saying, या अप्रत्यक्ष रूप से ये कह रहे हैं Lord, why didn't you take the box and sold it and given the money to the poor? कि प्रभु तूने उस इत्र को लेकर बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दे दिया। Missions, now it comes out, you've got big vision for the poor. वो कंगालों के लिए बड़े बड़े दर्शन की बातें निकल कर आती है, Because it is somebody else's money. क्योंकि वो किसी और के धन से लिया गया है। Jesus defended her. यीशु मसीह ने उस स्त्री के पक्ष में बोला। We are called to defend the helpless. जो असहाय है बीच में, उसका रक्षा करने के लिए हमें भेजा गया है। We are called to speak for those who cannot speak for themselves. हमें उन लोगों की तरफ से बोलने के लिए भेजा गया जो अपने खुद के लिए बोल नहीं पाते हैं। We are called to give righteous judgment. और हमें हर समय एक धर्मी न्याय करना चाहिए। She didn't defend herself. She didn't say anything. जब ये लोग कुड़कुड़ा रहे, उसको झड़क रहे थे, उस स्त्री ने कुछ भी अपने बचाव में नहीं बोला। Imagine you are sacrificing and somebody saying, why this waste is happening? सोच कर देखिए, आप एक बलिदान को लेकर प्रभु के सामने अर्पण कर रहे हैं और लोग झिड़क रहे, क्यों बलिदान कर रहे हो। You're not told them that I'm doing some big thing. आपने उनको यह भी नहीं कहा कि मैं कोई बड़ा बलिदान कर रही हूं। That was between you and your Lord. वो बलिदान तो आपके और आपके परमेश्वर के बीच का था। Jesus spoke for her. यीशु मसीह ने उस स्त्री की तरफ से कहा, And he said to her, उन लोगों से कहा, let her alone. उसे छोड़ दो। Amen. मैं Why trouble here? उसे क्यों सताते हो। She had wrought a good work on me. उसने तो मेरे साथ भलाई की है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। What we do for God is never wrong. जो कुछ भी हम प्रभु के लिए करते हैं वो कभी भी गलत नहीं होता है। There are people who have sold their lands, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीनों को बेचा है, given it to the house of God. प्रभु के घर के लिए उसको दिया They है। build the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज को बनाने में अपना योगदान कर रहे For हैं। those who have not done it, for them it is waste. जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए वो बर्बाद है। What's the future? कहते भविष्य क्या है, What is our future too? हमारा भविष्य क्या है। It's all in the hands of God. ये सब तो प्रभु के हाथ में है प्रियो। Amen. आमेन। Let her alone. यीशु ने कहा उसे छोड़ दो। Why trouble her? उसे क्यों सताते She has हो। done a good work on me. उसने तो मेरे साथ भलाई की है। You have the poor always with you. कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं Whenever you want, you can do them good. और जब तुम चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो। Me, you do not have always. परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। And then he spoke those very precious words. तब उसने उन बहुमूल्य शब्दों को कह दिया। She had done what she could. जो कुछ वह कर सकी उसने किया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. She has done what she could. वो जो कर सकती थी उसने वो ही किया। She has anointed me for my burial. उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में मेरे देह पर इत्र मला है। Wheresoever the gospel shall be preached. ओ सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया What this जाएगा, woman has done shall be spoken for her. जो कुछ भी स्त्री ने किया है
इस काम की चर्चा उसके स्मरण में की जाएगी। Amen. आमेन। She has done what she could. उसने वो किया जो वो कर सकी। You see, God is not expecting us to do something which we cannot. परमेश्वर देखिए हमसे कभी ऐसा अपेक्षा नहीं कर रहा कि हम वो काम करें जो हमसे हो नहीं सकता। He doesn't expect us to do things which are so difficult and which we are not able to do. और ये नहीं अपेक्षा करता कि हम ऐसे कुछ काम करें जो हमारे लिए करना कठिन है और जो हम कर नहीं सकते हैं। He knows what ability, what power, how much we have. परमेश्वर को मालूम है हमारे पास कितनी योग्यता है, कितनी सामर्थ्य है कोई काम को करने की। He said to Moses, what is in your hand? उसने मूसा से पूछा तेरे हाथ में क्या है? It's a rod. उसने कहा प्रभु लाठी है। That's enough. प्रभु ने कहा काफी है, That's enough. वो काफी है। David, दाऊद 5 stones 5 पत्थर and a sling. और एक गोफन, That is enough. वो काफी है। 5 loaves and 2 fishes. 5 रोटी और 2 मछली ही है। What is available is enough. जो उपलब्ध है वो काफी है। She has done what she could. उस स्त्री ने वो किया जो उससे हो सकता था, Rather, she has done more than what she could. परंतु जितना हो सकता था उससे कहीं बढ़कर उसने किया था। God is expecting us to do something for Him. परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा करता कि हम उसके लिए कुछ करें। In the book of Ecclesiastes we read, सभोपदेशक की किताब में हम पढ़ते हैं 9th chapter 10th verse, और उसके 9 और उसके 10 आयत में, whatsoever thy high hand findeth to do, do it with all your might. जो कुछ तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। Amen. आमेन। Whatsoever your hand findeth to do. जो कुछ भी तेरा हाथ करने को कर सके। Maybe God, the ability that God has given you, यानी जो भी योग्यता परमेश्वर ने तुझको दिया है, the resources you have, जो तेरे पास संसाधन हैं, when you invest it in God, जिसे तू जब उसे प्रभु के कार्य में निवेश करता है, you have your reward. तुझे उसका प्रतिफल मिलता है। Jesus told the rich young ruler, यीशु मसीह ने उस जवान धनवान से कहा, go sell all that you have. जा जो कुछ भी तेरे पास धन है, उस जो चीज है सब बेच दे। No, he didn't say that to everybody, और उसने यीशु मसीह ने ऐसी बात हर लोगों से नहीं कही, because this man loved his wealth more than God. परंतु ये नौजवान जो आया था उसे अपने धन से ज्यादा प्रेम था, इसीलिए He says, go sell all that you have, give to the poor. यीशु ने कहा जा जो कुछ भी तेरे पास है सब बेच दे, कंगालों को दे दे, You will have treasure in heaven, तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा, and come and follow me. और तू आकर मेरे पीछे हो ले। He was very sad. He went away, वो discouraged, बहुत उदास हो गया, निराश होकर चला because he गया, loved his money. क्योंकि वो अपने धन से बहुत प्रेम करता था। Listen, my friend. प्रिय मित्रों सुने, What are we investing in God? आज हम परमेश्वर के राज्य में किस चीज का निवेश कर रहे हैं? It's very hard to talk on these things. इन बातों के विषय में बैठकर बात करना कठिन लगता People है, misunderstand you. क्योंकि लोग कई बार आपको सही समझ नहीं पाते, गलत फहमी But होती। Jesus, God looks at the heart of people. लेकिन ध्यान रहे परमेश्वर लोगों के हृदय के अंदर देखता है। One time Jesus is saying, एक बार प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, who has got a servant who plows the field and comes back from the field? किसके पास ऐसा सेवक है जो खेत में काम करे, हल चलाए और वापस लौट कर घर आए? And the master expects him to first serve him, and then he can serve himself. और तब जो उसका मालिक या स्वामी है वो ये अपेक्षा करता है कि वो सेवक पहले उसकी सेवा करे, उसके बाद वो अपनी स्वयं की सुधि ले। So likewise, इसी प्रकार से when ye shall have done all these things जब तुम जो कुछ भी करना है सब कर चुको, which are commanded you, जो तुम्हें आज्ञा दी गई है करने की, उसे जब कर लो, you say like this, तब तुम ऐसा कहना, we are unprofitable servants. हे प्रभु हम तो अयोग्य दास हैं, We have done that which was our duty to do. हमने केवल वही किया है जो हमारा कर्तव्य था करने को। Listen, our सुनिए, service for God हमारी सेवा जो प्रभु के लिए है should be selfless. वो निस्वार्थ होनी चाहिए। Where your treasure is, जहां पर भी आपका धन रखा हुआ there will है, your heart be also. आपका मन भी उसी पर लगा रहेगा। Much is written in the book of Corinthians कुरिन्थियों की किताब में बहुत कुछ लिखा है in regards to giving to God. परमेश्वर को देने के बारे में। It says in
1 Corinthians 16 chapter, पहला कुरिन्थियों और उसके 16 अध्याय में ऐसा लिखा है, second verse. और उसकी दूसरी आयत में कहता है, Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store as God hath prospered him, that there be no gathering when I come. सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। Okay, now Paul is encouraging them. पौलुस इन विश्वासियों को प्रोत्साहित कर रहा था, As God has prospered you, जैसे परमेश्वर ने अब तुमको तरक्की इतनी दी है, set aside apart for his kingdom. तो अपनी आमदनी में से कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए अलग रखो। Remember, याद रखो, it is just not 10% which is God's. केवल 10% ही परमेश्वर का अधिकार में नहीं है, It is 100% is God. वो तो 100% जो हमारे पास है परमेश्वर का उस पर अधिकार है। He gives it to us that we might use it. God doesn't need anything. वो इसलिए हमें देता है कि हम उसका इस्तेमाल करें, प्रभु को उनकी जरूरत नहीं है। Silver and gold is his. सोना और चांदी इस जगत का प्रभु का ही है। Everything is his. दुनिया की हर बड़ी चीज प्रभु की है। Just to touch your heart to know how much you care for his kingdom. केवल आपके हृदय को छू कर देखने के लिए कि आप उसके राज्य की कितनी फिक्र करते हैं। He expects the believer to give something towards God. वो अपेक्षा करता है कि वे विश्वासी एक अंश प्रभु के राज के लिए दे। And one thing is for sure, और एक बात तो तय है, that man who gives will never lack. कि जो मनुष्य देता है उसे किसी चीज की घटी नहीं The होगी। principles of the scripture. पवित्र शास्त्र के जो सिद्धांत है, Give and it shall be given to you. दो तो तुम्हें दिया जाएगा, Pressed down, वो उसे दबाकर भरकर, shaken together, वो हिलाकर और दबाकर दिया जाएगा। will men give into your bosom. लोग देंगे, तेरे गोद में देंगे, Because we have obeyed God. क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन We किया have है। sowed a seed. हमने बीज को उसके राज्य में बोया Seed है, must bring forth. और वो बीज को फलना चाहिए। Amen. आमेन। It will bring वो forth जरूर फलेगा when it is put in good ground. जब वो अच्छी भूमि में बोया गया है तो। Hallelujah. हालेलुया। Be not deceived with false people. धोखा ना खाएं भरमाने वाले लोगों से, Those who only demand for money. जो केवल धन की मांग करते हैं। You be faithful to your church. आप अपनी कलीसिया जो भी है उसके प्रति वफादार Faithful to रहें। your pastor. अपने पास्टर के प्रति विश्वास योग्य रहें। Help them और उनकी सहायता करें, with prayer प्रार्थना के द्वारा मदद करें, and by finance, आर्थिक तौर से मदद करें, by a moral support. अपने नैतिक सहारा देकर प्रभु के दास का मदद करें। No church is perfect. कोई भी कलीसिया आज सिद्ध नहीं है, No pastor is perfect. कोई पास्टर सिद्धता हासिल नहीं किया But for the है, moment that God has given you, परंतु जो क्षण जो समय परमेश्वर ने मुझको आपको दिया है, the man God has given you, प्रभु ने जो जन आपको और मुझको दिया है, honor him, obey him, वो उस व्यक्ति का आदर करे, उसकी आज्ञा माने, help him in the ministry. प्रभु के सेवा कार्य में उसकी सहायता करे। You are investing in God's kingdom. ऐसा करने के द्वारा प्रभु के राज्य में निवेश करते हैं। Amen. आमेन। 2 Corinthians, दूसरा कुरिन्थियों में लिखा है, 8th chapter. और उसके 8 अध्याय में, This is very interesting one. ये बहुत ही रोचक भाग है। दूसरा कुरिन्थियों 8 में 1 from the first verse to 5th verse. पहली से 5वीं आयत तक। I am reading from Amplified. मैं एम्पलीफाइड अनुवाद से पढ़ रहा हूं। You see, Paul is writing पौलुस इस about बात the churches in Macedonia, how they were so eager to help. मकिदुनिया की कलीसियाओं के ऊपर लिख रहा कि वो कैसे देने के लिए इतने उत्सुक थे। He says like this: इस प्रकार कहता है, We want to tell you further, brethren, about the grace, the favor and the spiritual blessing of God which has been evident in the churches of Macedonia. अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर की उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ है, कलीसियाओं पर हुआ है। Their desire to give alms. This is what the Amplified says. For in the midst of their ordeal of severe tribulation, भयंकर कंगालपन के बीच में their abundance of joy and the depth of poverty have overflowed in wealth of lavish generosity on their part. कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में
उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। Hallelujah. हालेलुया। They are poor. वो लोग तो कंगाल They हैं, are seeking opportunity to give. वे लोग तो भी मौका ढूंढ रहे हैं देने का। They are begging that we want to give. वे लोग ये निवेदन कर रहे हैं हमको कुछ प्रभु को देना है। Paul says, पौलुस बोलता, I did not take anything from you. मैंने तुम लोगों से कुरिन्थ से कुछ नहीं लिया, With my own hands I worked. मैंने अपने ही हाथों से परिश्रम किया The है। churches of Macedonia supplied my need. मकिदुनिया की कलीसियाओं ने मेरे आवश्यकता को पूर्ति की है। Third verse says, तीसरी आयत में as कहता I है, bear them witness, they gave according to the ability. Yes, and beyond their ability did they voluntarily give. उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। Hallelujah. 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 Amen. Not only what I have little bit here. न केवल मेरे पास जो जेब में अभी है, It's in the shelf. वो जो शेल्फ में It's in है, the bank. जो बैंक में है, Whatever. चाहे वो जो भी हो, God, whatever you want. परमेश्वर जो कुछ भी तू चाहे, I'm here. मैं तैयार हूँ I'm willing प्रभु, to sign. मैं प्रभु हस्ताक्षर करने I'm तैयार willing to हूँ, give. मैं देने के लिए तैयार हूँ। Beyond my ability. मेरी योग्यताओं से भी उस पार। She has done what she could. इस स्त्री ने जो उससे हो सका वो उसने उसे पूरा किया। They have done beyond what they could not do. वो उन मकिदुनिया के लोगों ने अपने सामर्थ से बाहर भी उन्होंने मन से दिया। Hallelujah. हालेलुया। What kind of people they are? कैसे लोग वो थे। Fourth verse. चौथी आयत, Begging us most intensely the favor of fellowship of contributing in this ministry for the relief and support of the saints in Jerusalem. और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। Amen. Just pleading. विनती कर रहे हैं For what? किसके लिए? Oh, give us some funds. हमको कुछ धन दो। No. नहीं, They are pleading and saying, विनती करके ये बोल रहे हैं, show us how we can give. हमको बताओ कि हम कैसे और दान दे सकते। Hallelujah. हालेलुया। We will do our part. हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। We go from house to house. हम चाहे घर से घर जाएंगे, We can make announcements. हम लोगों से कहेंगे। Jerusalem needs our support. यरूशलेम Hallelujah. में लोगों को हमारे सहारे की जरूरत है। The saints of Jerusalem needs our support. यरूशलेम के पवित्र लोगों को हमारे सहारे की जरूरत है। We live in huts, हम तो झोपड़ियों में रह रहे हैं, but we will be able to do by God's grace. परंतु कहते हैं कि हम प्रभु के अनुग्रह से उसे कर Mind you, पाएंगे। this church is going through tribulation. याद रहे कि ये कलीसिया के लोग जो बोल रहे थे वे बड़े सताव से गुजर रहे Deep थे। poverty had come upon them, बड़ा क्लेश और कंगालपन उनके ऊपर भारी कंगालपन आया था, but they were willing to give. परंतु उनकी उदारता और बढ़ गई। Hallelujah. Amen. I love this portion. ओ मुझको ये भाग खुश कर देता है। And fifth verse और says, 5वीं आयत कहती है, now was this gift of theirs merely contribution that we expected, but first they gave themselves to the Lord and to us his agents by the will of God, entirely disregarding their personal interest. They gave as much as possibly they could. और जैसी हमने आशा की थी वैसा ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। Amen. Amen. Just not money. केवल धन नहीं, We are here. कहा हम हाजिर हैं। Hallelujah. Amen. You'll find some people. आप कुछ लोगों को ऐसे पाते हैं, Thank God for them also. प्रभु का धन्यवाद उनके लिए। But only throwing money is not everything. केवल धन को ही डाल देना ही पर्याप्त नहीं है। You be there when you're needed. जब आपकी वहां पर जरूरत पड़े आप हाजिर रहें। Money will not always solve problems. हमेशा समस्याओं का हल धन से नहीं है, It is through prayer, वो प्रार्थना से है। through prayerful men and women. प्रार्थना करने वाले भाइयों और बहनों से They gave themselves to the Lord उन्होंने प्रभु को अपने आप को दे दिया, and to us, और फिर the servants of God. हमको भी अपने आप को दे दिया जो प्रभु के सेवक लोग हैं। पौलुस कहता, Entirely disregarding personal interest. व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरी तरह अनदेखा करके उन्होंने ऐसा किया। They gave as much as possibly they could.
और जितना उनसे संभव हो सकता था उन्होंने उतना दिया। Hallelujah. Amen. She has done स्त्री ने वो किया what she could. जो वो कर सकती थी। Hallelujah. जीसस। Sometimes कभी कभी we need to ask a question to our own selves. हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। When we read these portions of scriptures, जब पवित्र शास्त्र के ऐसे भागों को हम पढ़ते हैं, Lord, हे प्रभु, where do I stand here? मैं कहाँ पर आज खड़ा हूँ। One time Jesus sat by the treasury. एक बार यीशु मसीह जहाँ लोग दान डाल रहे थे वहां पर बैठा हुआ था। Mark's Gospel 12th chapter मरकुस और उसका 12 अध्याय में ही लिखा है 42 and 43 says, और उसका 42 और 43 में कहता है, there came a certain poor widow and she threw in 2 mites which make a farthing. इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। And he called unto him his disciples and said unto them, verily I say unto you, this poor widow hath cast more in than all they which have cast into the treasury. जीसस क्राइस्ट। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। In the crowds of people. लोगों की उस दान देने वाली भीड़ के अंदर से। Now don't think this poor widow means an old lady. ये मत सोचिएगा विधवा लिखा है इसका मतलब वो कोई बूढ़ी औरत होगी। She might have one child in her arms and another one holding her dress. संभव है कि जवान औरत विधवा हुई हो, एक बच्चा गोद में, शायद एक और बच्चा हाथ में उसके कपड़े को थाम के खड़ा हो। But a desire, परंतु इस विधवा की एक इच्छा, I must give something to God. मुझे परमेश्वर को कुछ देना है। And in the line, in the crowd, उस भंडार में दान डालने वालों की इस भीड़ के अंदर there are others who have come with big bags. ऐसे भी लोग कतार में हैं जो बड़ी बड़ी थैलियां भंडार में डालने धन का लाए हैं। And the sound of their putting in there, it can be heard from far. और जो धन और जो सिक्के वो उसमें डालते उसकी खनक दूर तक सुनाई देती है। Maybe some people may applaud them and appreciate them. शायद देखने वाले लोग तारीफ करते हैं इन्होंने कितना बड़ा धन डाला। This woman holding those 2 mites, परंतु ये विधवा अपनी मुट्ठी में उन 2 दमड़ियों को छुपा के लाई। nobody should see that. ऐसे जैसे कि कोई उसको देख भी मत पाए। God, here is what I have. परमेश्वर मेरे पास जो है वो यही है। And I put it there. और उसने परमेश्वर के घर में उस भंडार में से डाल दिया। When no one sees, जब कोई मनुष्य का ध्यान तुम्हारे ऊपर नहीं गया, God watches over it. परमेश्वर तुझको लगातार देखता है। You might have blessed people and they have turned around behind, turned against you. लोगों को आपने आशीष दिया होगा परंतु वे आपके विरुद्ध मुड़ गए। It's not waste. It's not waste. You gave it to God. आपने जो दिया वो बर्बाद नहीं है प्रियो, क्योंकि आपने मनुष्य नहीं परमेश्वर को दिया है। Jesus called his disciples and said, यीशु मसीह ने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, this woman मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने has given more than all those people who have given. सबसे बढ़कर डालने वालों में सी ने धन को डाला है। First they gave out of their abundance. क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है। She gave her all. परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था उसे डाला है, अपनी सारी जीविका डाल दी। Amen. That lady put 75,000. दूसरी वो स्त्री उसने 75,000 That ointment. का कीमत का वो इत्र उंडेल दिया। What she could, जो वो कर सकती थी she gave. उसने प्रभु को दे दिया। What you can do now, जो do it today. जो अब आप कर सकते हैं आज उस काम को करें। Do not contemplate. उस पर विचार मनन ना करें।
Don't think whether it is right or wrong. ये कि सही है या गलत है, इस पर विचार न करें। Don't take other people's advice. लोगों की सलाह कभी मत मांगे जब प्रभु को हम देते हैं। You must let your people know in the house what is doing. अपनी घर के लोगों को आप बता सकते हैं कि आप प्रभु के लिए क्या करना चाहते हैं। But listen, परंतु सुनिए, when God is speaking, जब परमेश्वर बात करता है do it. तब आप उस काम को करें। It says, कहता है, this poor widow had cast in more. इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. It's the heart which counts. वो हृदय है जो कि गिना जाता है। The love for God. परमेश्वर के लिए प्रेम कितना था। She did what she could. उसने जो कुछ उससे हो सका उसने उसे किया है। In 1 Corinthians 16 chapter, 1 कुरिन्थी और उसके 16 अध्याय में 15th verse it says, और 16 के 15 में वो कहता है, I beseech you, brethren, ye know the house of Stephanas, that it is the first fruit of Achaia, that they have addicted themselves to the ministry of the saints. हे भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि वे अखया में पहले फल हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। In English it says they have addicted themselves to serve God's people. इंग्लिश के अनुवाद में कुछ ऐसा लिखा है कि उन्होंने जैसे उनको लत लग गई हो प्रभु की सेवा में देने के लिए। They're always seeking an opportunity to serve. वो जैसे कि मौका ढूंढते रहते सेवा करने का। Where can I give my service to? मैं कहां पर अपनी सेवा को दे पाऊं। The household of Stephanas. स्तिफनास के घराने को, Hallelujah. Hallelujah. Was known for their hospitality. वे लोग अपनी खातिरदारी के लिए जाने जाते Known थे। for the service for God's people. परमेश्वर की लोगों की सेवा के लिए ये लोग जाने जाते थे। They gave themselves over इन्होंने अपने आप को स्वयं को दे दिया था to the ministry of the saints. संतों के पवित्र लोगों की सेवा के लिए। You see, the other religions, the people regard the saints like anything. देखिए दूसरे धर्मों में लोग कैसे संतों को इतना अहमियत देते हैं, Their saints. उनके संतों को। What about yours? परंतु मेरे और आपके विषय में क्या है प्रियो? Some people say, I don't find anybody as a man of God. कोई तो ऐसा भी सोच रखता है कि मुझको परमेश्वर का जन जैसा कोई नहीं दिखता, So where can I give? तो मैं कहां पर दूं? Then you need to change. शायद आपको ही बदलने की आवश्यकता है। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, if you have a heart, यदि आपके पास में ऐसा दिल है, God will show you परमेश्वर आपको दिखाएगा, the way. रास्ता दिखाएगा। Jesus is our example. प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है। 2 Corinthians 8 chapter 9th verse. 2 कुरिन्थियों 8 के 9 में लिखा है, It says like this. यहाँ ऐसे हम पढ़ते हैं, For you know the grace of our Lord Jesus Christ, though he was rich, yet for your sakes he became poor, that he through his poverty might be rich. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। Jesus had given an example यीशु मसीह ने स्वयं एक आदर्श हमको देकर गया, of sacrifice. बलिदान का एक उदाहरण। He lived a sacrificial life. वो एक बलिदान भरा जिंदगी काटता रहा, He gave. ओ लोगों को देता रहा। Listen, सुनिए, God gave परमेश्वर ने दिया, his son. अपने बेटे को उसने भी दिया है। Jesus gave his life. यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया। The Holy Ghost gives us his gifts. पवित्र आत्मा वरदानों से हमको भर देता है। God is a giver. परमेश्वर तो एक ऐसे ही देने वाला परमेश्वर है। Amen. आमेन। One songwriter says, एक गीत का लेखक ऐसा लिखता है, I'm going to give. मैं प्रभु को देने जा रहा हूँ, I'm until there is no more to give. तब तक देता रहूंगा जब तक मेरे पास और देने को ना रहे। Amen. Amen. I'm going to love मैं प्रभु से प्रेम करूंगा until there's just no more love.
जब तक मेरे पास प्यार करने के लिए प्यार भी ना बचे, I can never outlove my Lord. लेकिन ये सब करके भी मैं कभी भी अपने प्रभु के उस बड़े प्यार से बड़ा बढ़ नहीं पाऊंगा। Look at Calvary. कलवरी की तरफ जरा देखें, He did उसने वो किया what he could जो वो कर सकता था, for humanity. मानवता के लिए जो कर सकता था, He did it for us. उसने हमारे लिए वैसा ही किया। Amen. आमेन। We do for people. We do for our own selves. हम लोगों के लिए कुछ करते हैं, अपने लिए भी हम करते हैं। We pray for so many things for ourselves. हम अपने स्वयं के लिए प्रार्थना करते, बहुत काम करते हैं, And there is a little part of prayer for others. और हमारी प्रार्थनाओं में एक थोड़ा सा भाग दूसरों के लिए भी होती है। What about the kingdom of God? परमेश्वर के राज के विषय में क्या है? A line of prayer only. क्या हमारी प्रार्थनाओं में केवल एक लाइन प्रभु के राज के लिए? Paul writing in Acts 20, and Luke writing in Acts about Paul, 20th chapter, 31st, 5th लूक verse. जब प्रेरितों के काम के 20 अध्याय में लिखता है, He talks here that it says in verse 35 35 आयत में लूका लिख रहा है about what Paul is saying. कि पौलुस क्या कह रहा है। I have showed you all things how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। There will be always weak people. हमेशा आपके बीच में निर्बल लोग There will be रहेंगे, always people who are in need. हमेशा ऐसे लोग जो जरूरतमंद रहेंगे। Maybe spiritual need, physical need, mental need. संभव है कोई आत्मिक आवश्यकता हो, किसी की मानसिक आवश्यकता हो, भौतिक आवश्यकता हो, Some may need material things. किसी को हो सकता है भौतिक वस्तु की जरूरत हो। And Paul is saying पौलुस कह रहा, how Jesus taught us यीशु मसीह ने हमको कैसे सिखाया है, याद to रखो, support the weak कि जो निर्बल है उसको संभालना है, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है जो उसने हमसे कहा it है, is more blessed to give than to receive. लेने से देना धन्य है। Amen. Amen. What shall I render unto the Lord मैं प्रभु को क्या दूंगा, for all the benefits that he has done? तमाम जो उसने मेरे जीवन के लिए भलाई की उसके बदले The में। psalmist is asking a question to himself. वो भजन का लेखक अपने खुद से ये सवाल पूछ रहा है, With all the benefits which God has given me, तमाम भलाइयां जो प्रभु ने मेरे जिंदगी में इतनी की है, what can I give you? उसके बदले मैं क्या दूं? You read the Old Testament. आप पुराने नियम को पढ़ते They हैं, brought willingly and gave it to the house of God. लोग स्वेच्छा से चीजों को लाकर प्रभु के भवन में देते थे। So much so, Moses had to say, wait, now hold it. एक बार इतना अधिक हो गया कि मूसा को कहना पड़ा, अब वस्तुएं लाना बंद करो, रोक दो, We are not able to contain so much of it. क्योंकि इन सब को रखने के लिए हमारे पास जगह भी नहीं है। Listen, my friends, सुनिए मेरे दोस्तों, what do we give to God? हम परमेश्वर को क्या देते हैं? What is left? क्या सारा खर्च करने के बाद जो बच गया, We'll see if there anything is left, then we will put it there. देखते हैं कुछ बच गया हो तो प्रभु को दे देते The हैं। first fruits is God's. जो प्रथम फल है परमेश्वर का है। Psalmist says, भजन का लेखक बोलता है, give unto the Lord, O ye mighty. Give unto the Lord glory and strength. सामर्थी लोग परमेश्वर को दो, अपने सारे बल से प्रभु को दो। Give unto the Lord glory due unto his name. उसके नाम को जो महिमा देनी है वो उस प्रभु को दो। Worship the Lord in the beauty of holiness. ओ पवित्रता की खूबसूरती में उस प्रभु की महिमा करो जिसके वो योग्य है। They gave themselves over to God. लोगों ने अपने आप Hallelujah. को प्रभु की सेवा के लिए दे दिया। God loveth a cheerful giver. परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। Let him not give grudgingly कोई भी जन कुड़कुड़ा कर ना दे, or of necessity. या वो कमजोरी के साथ ना दे।
God loves a cheerful giver. क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। She gave what she could. स्त्री ने तो जो वो कर सकती थी प्रभु को उसने दिया। I wish there was something more written about her. मैं सोचता काश स्त्री के बारे में हम कुछ और जान पाते, But I imagined परंतु मैं सोचता हूँ everyone's gone. Meeting is over. वहाँ उस शमौन के घर की सभा समाप्त हो गई, सब लोग उठकर कुछ देर बाद चले गए, But the aroma still lingers in the house. परंतु कमरे के अंदर अभी भी वो गाढ़ा खुशबू उस इत्र का बचा हुआ है। Everyone passing by. घर के सामने से गुजरने वाले लोग भी, Simon, शमौन what's happened? तेरे घर में क्या हो रहा है? The story goes on. और वो स्त्री की कहानी कानों कान Hallelujah. फैलते जाती है। Hallelujah. Jesus. Hallelujah. The story Hallelujah. goes on. वो कहानी उस स्त्री की बढ़ते जाती The है। master moves in the crowd. स्वामी भीड़ के बीच में चला जाता है And the aroma spreads all around. और वो उसका इत्र का खुशबू उस पूरे भीड़ में संचारित हो जाता है। This is my imagination. It is not written. बाइबल में नहीं लिखा, परंतु ये मेरी कल्पना है। And the people ask the disciples, what's it? और लोग चेलों से पूछते, ये प्रभु के ऊपर से खुशबू क्या आ रही है? The story again goes on. वो कहानी फिर से दोहराई जाती है। She spake no words. एक ऐसी स्त्री जिसने कोई शब्द नहीं कहा, But her story परंतु उसके जीवन की कथा is told all over the world. आज सारे जगत में प्रचार हो रहा है। When you give sacrificially, जब आप बलिदान पूर्वक it will प्रभु को rise. देते, It will rise towards the nostrils of God. वो परमेश्वर यहोवा के नथनों में एक सुगंधदायक, It may not be a big amount. वो हो सकता है वो राशि जो आप प्रभु को देते वो बड़ी राशि It's नहीं your है, heart which counts. वो आपका हृदय की दशा बहुत मायने रखती She है। gave what she could. इस स्त्री के हृदय से वो जो दे सकती थी उसने उसे दिया। What ability you have. जो योग्यता आपके पास है, Don't think you don't think that you can do much for the church. ये मत सोचे कि आप कलीसिया के लिए बहुत क्या कर सकते हैं। You do what you can. जो आप कर सकते हैं केवल वो करे। It's cleaning or standing by. वो हो सकता है केवल वहां साफ सफाई करना या वहां पर लोगों के साथ खड़ा रहना, Taking somebody's bag. किसी और के बैग को उठाना, Do little things. थोड़े छोटे छोटे काम प्रभु के घर के It's लिए। all in God's record. ये सारा काम जो प्रभु के लिए करते उसके लेखे में है। Anyone gives a cup of cold water in my name, बाइबल कहती है यदि कोई भी मनुष्य मेरे नाम से प्रभु के जन को एक प्याला ठंडा पानी भी पिलाता he shall है, by no means lose his reward. ऐसा आदमी भी अपने प्रतिफल को किसी रीति से नहीं खोएगा। In my name. मेरे नाम से। Hallelujah. हालेलुया। She did इस स्त्री ने वो किया what she could. जो वो कर सकती थी। And Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा that act इस स्त्री का ये कार्य was for her burial, for his burial. वो यीशु मसीह के गाड़े जाने की तैयारी में इस स्त्री ने उसके ऊपर इत्र डाला है, Anointed. उसका अभिषेक किया है मौत के पहले। Hallelujah. Jesus defended her. यीशु मसीह ने उस स्त्री का बचाव किया। Jesus spoke for her. यीशु मसीह ने उसकी तरफ से बोला। She went back justified. ये स्त्री धर्मी और सही ठहराए जाकर उस जगह से चली गई। God will speak for you परमेश्वर आपकी तरफ से बोलेगा when you have no one to speak for you. जब आप ऐसी हालत में होते हैं जब आपकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं होता है। God will defend you परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा when you have no defense. जब तेरे पास रक्षा नाम की कोई चीज नहीं। God will stand by your side परमेश्वर तब तेरे साथ खड़ा रहेगा when all have left you. जब सारे एक एक करके उस जगह से चले जाते हैं। Trust him. परमेश्वर पर भरोसा रख, He is always by your side. वो हमेशा वहां तेरे पास है। Whatever you can do, जो कुछ तू कर सकता है do it for God. प्रभु के लिए उसे कर। Amen. आमीन। It's just not money. वो केवल धन नहीं है, It's you. वो आप स्वयं है। Scripture says वचन बोलती they है gave themselves उन लोगों ने अपने आप को दे दिया, for the service of God. परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को दिया। That counts a lot. और ये उनका कदम
बहुत मायने रखता है। Shall we pray? क्यों ना हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, even as we read this portion of scripture, जैसे पवित्र शास्त्र के इस भाग को हम पढ़ते हैं स्वामी, oh, we have so much to learn from it. प्रभु हमें इसमें से कितना सीखने को है How much you care कि तू कितना फिक्र करता है for those who would love you. उनसे जो तुझसे प्रेम करते हैं। प्रभु, Lord, thank you, Father, हाँ प्रभु, तेरा धन्यवाद हो पिताजी that you show us from the word, कि तू हमको वचन से बताता है। Lord, what we can do, प्रभु, हम जो कर सकते हैं you know it already. वो तो तू पहले ही जानता है हम क्या कर सकते That's हैं। why you said इसीलिए ही तूने कहा she did what she could. स्त्री ने वो किया जो वो कर सकती Give us थी। grace, Lord, हमको अनुग्रह देना that प्रभु, we might do what we ताकि can हम वो कर सके जो हम कर सकते हैं for you तेरे लिए प्रभु and for your kingdom. और तेरे राज के लिए। Bless your people. अपने लोगों को आशीष दे, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Amen. My Jesus, my Jesus। Before we go partake of the Lord's table, इससे पहले कि आज हम प्रभु के इस ब्यारी में शामिल हों, for those of you who are at home, आप में से जो लोग घर में हैं, prepare yourself in prayer. अपने आप को प्रार्थना करके तैयार करें। Get things ready for taking the partaking of the Lord's table. परमेश्वर की इस ब्यारी में शामिल होने के लिए जो वस्तु की जरूरत है वो सब तैयारी कर लें। Let's take it prayerfully. और जब हम इसमें अभी शामिल होते हैं, प्रार्थना पूर्वक हम इसमें शामिल हों। In the same night in which the Lord was betrayed, उसी रात जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, he took bread, broke it and gave it to his disciples. उसने रोटी ली, उसे तोड़ा और अपने चेलों को ये कह कर दिया, Eat this in remembrance of my broken body. इसे मेरी टूटी हुई देह के स्मरण में तुम खाया करो। In like manner, और उसी रीति से उसने he took the cup. प्याले को लिया, When he blessed it, he gave it to them, saying, जब उसे आशीष दी, अपने चेलों को यह कह कर दिया, Drink this in remembrance of my shed blood. इसे मेरे बहाए हुए खून के याद में तुम पिया करो। For as oft as you eat of this bread and drink of this cup, और जब जब तुम इस रोटी में से खाते, इस प्याले में से पीते हो, you do remember my death. तुम मेरी मौत को याद करोगे। For as oft as you eat of this bread and drink of this cup, और जब जब तुम इस रोटी में से खाओ, इस प्याले में से पियो, you remember my death. मेरी मौत को तुम याद करोगे। Let a man examine himself. होने दे मनुष्य अपने आप को जांचे, So let him eat of this bread and drink of this cup. और तभी वो इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए। For he who eateth and drinketh unworthily, क्योंकि जो कोई अनुचित रीति से खाता है पीता है, eateth and drinketh damnation unto himself, not discerning the Lord's body. खाने और ऐसे खाने और पीने के द्वारा अपने ऊपर दंड की आज्ञा लाता, प्रभु के देह को उचित ना जानने के कारण। Just ask God to forgive us. प्रभु से हम अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं, And remember और याद करें what we are today because of the cross of Christ. आज हम जो कुछ भी हैं प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के कारण है। Thank you, Lord. Shall we pray for the Lord's table? आइए हम इस ब्यारी के लिए प्रार्थना करें। Father, स्वर्गीय पिता, even as we partake of the bread and the wine, जैसे हम इस रोटी और दाखरस में शामिल होते हैं, help us to realize that price that you paid on the cross of Calvary, Lord. हमारी सहायता कर प्रभु कि हम एहसास कर सके वो कीमत जो तूने कलवरी के क्रूस में बलिदान करने के लिए चुकाया है। Your blood was shed for us. तेरा खून जो बहा दिया गया हमारे लिए, Your body was broken. तेरा शरीर तोड़ा गया। I want to thank you, Lord. We want to thank you. प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। Now, Lord, even as we partake, और अब जब हम इसमें शामिल होते हैं, bless it to our spirit, soul, mind and body. इसे हमारे शरीर प्राण आत्मा के लिए तू धन्य कर दे। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन, आमीन। Lord, we take this. We thank you for this bread. प्रभु हम इस रोटी के लिए तुझको धन्यवाद देते।
reminds us of your broken body, Lord. जो तेरी तोड़ी गई शरीर को हमको याद दिलाती है। We all together partake with thanksgiving. धन्यवाद के साथ प्रभु हम इसमें शामिल होते हैं। Let's partake together. आइए हम एक साथ इसमें शामिल हों। Amen. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. Take the cup. Thank you. प्याले को ले लें। Take the cup in our hands. प्याले को अपने हाथों में ले लें। Receive it with thanksgiving. धन्यवाद के साथ हम इसमें शामिल होंगे, Remembering याद करते हुए the blood which was shed for our redemption. प्रभु का खून जो हमारे छुटकारे के लिए बहाया गया है। Even as you partake with faith that you might be healed also. और जब हम इसमें शामिल होते हैं विश्वास के साथ कि इसके लहू के कारण हम चंगे भी हुए हैं। We receive it by faith and thanksgiving, Lord. विश्वास के साथ और धन्यवाद के साथ हम इसमें शामिल होते हैं। Let's partake together. आइए शामिल हो। Oh, hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless your name, Lord. Thank you, Lord. Lord, we thank you for this table, Lord. प्रभु मेज के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं। Thank you for the healing it brings to our spirit, soul, mind and body. ये मेज जो हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, प्राण के लिए जो चंगाई लाती, हम तुझको धन्यवाद देते We हैं। know we are stronger than before. हम जानते हैं प्रभु हम पहले से भी ज्यादा मजबूत हुए हैं, For you said, my flesh is meat indeed and my blood is drink indeed. क्योंकि तूने कहा मेरा शरीर खाने की एक वस्तु, मेरा लहू पीने की वस्तु है। Oh, we thank you, Lord. हम तुझको धन्यवाद देते हैं प्रभु। The power of this table will surge through our lives, Lord. इस मेज की सामर्थ हालेलुया हमारे जीवन के ऊपर सदैव बनी रहे। Heal us in our spirit, soul, mind, body. हमारे शरीरों को, प्राण को, आत्मा को चंगा कर दे। Bless your name. तेरे नाम को धन्य कहते हैं In प्रभु। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, Amen. आमीन। We take the offering. Thank you so much for your support and prayer. आपकी प्रार्थनाएं और आपके आर्थिक सहयोग के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। So, wherever you put your offering, put it there. आप जहां कहीं भी अपने भेंट को एकत्रित कर रहे हैं, वहीं पर आप उसे एकत्रित करें। We sing a chorus. इस समय जब हम एक कोरस को गालेंगे, आप अपनी भेंटों को वहां एकत्रित कर सकते हैं। Amen. Put it there. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it would be. Hallelujah. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters covers the sea. Father, we thank you for the offering which is come. पिता हम तुझे धन्यवाद देते इस भेंट के लिए जो तेरे लोगों ने दिया है। Return them 1,000-fold, I pray. उन्हें हजारों गुना लौटा कर देना मेरी ये प्रार्थना है। Those who could not give, bless them too. प्रभु जो देने में असमर्थ थे, तेरी आशीष उन पर भी रहे। We all together will love you and serve you all the days of our life. तेरे लोग मिलकर सारे जीवन भर हम तेरी सेवा और तुझसे प्यार कर सकें प्रभु। Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ,
and the love of God the Almighty, the blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us, all the saints all around this world, Yes. now and until Jesus comes back again. Amen. Amen. God bless you all.